Goods issues. So the next chapter that we are going to learn today is goods issues. Now, what is a goods issue? So goods issue is nothing but issuing the goods from inventory or from stock to production, or you issue goods to customer, or you issue goods to cost centers. So whenever there is a requirement from production or from sales or from any department's cost center, you issue the goods from stock to that particular purpose. So whenever we do goods issues from stock, we have to do the goods issues from unrestricted stock if the goods are going to be used. अगर मटेरियल का यूज होने वाला है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए यूज होना है या किसी कॉस्ट सेंटर के लिए हम करने वाले हैं, या अगर कस्टमर को हम मटेरियल सेल कर रहे हैं, so in all these cases whenever we do goods issues, it must be from unrestricted use stock. So the stock type in which the stock should be present is अनरेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक. अगर मटेरियल किसी को यूज करने के लिए देना है तो वो अच्छा होना चाहिए, दैट शुड बी इन वर्किंग कंडीशन. सो दैट स्टॉक इज प्रेजेंट इन unrestricted use stock. So whenever you are issuing the goods for any use purpose, it must be from the unrestricted use stock. अगर मटेरियल को स्क्रैप करना है तो आप ब्लॉक स्टॉक से भी देख सकते हो, आप क्वालिटी से भी दे सकते हो. बट अगर मटेरियल को यूज करने के लिए देना है, इफ यू आर डूइंग एसटीओ, प्लांट टू प्लांट, जो हमने 351 मूवमेंट देखा था, एक प्लांट से आप दूसरे प्लांट में मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो, यू आर ट्रांसफरिंग इट फॉर यूज, सो दैट मस्ट बी फ्रॉम अनरेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक. किसी कस्टमर ने हमको परचेस ऑर्डर दिया है, उसके अगेंस्ट हम उसको सेल कर रहे हैं, तो उस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट जो पीजीआई होगा, पोस्ट गुड्स इशू, that will be from unrestricted use stock. If you are issuing goods to production order, मटेरियल का प्रोडक्शन होने वाला है, प्रोडक्शन में वो मटेरियल कंज्यूम होने वाला है, द स्टॉक मस्ट बी इशूड फ्रॉम अनरेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक. ठीक है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. जब भी गुड्स इशू अगर यूज के लिए हो रहा है तो दैट मस्ट बी फ्रॉम अनरेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक टाइप. अनरेस्ट्रिक्टेड यूज से ही हमको गुड्स इशू करना है. नाउ व्हाट हैपेंस एट गुड्स इश्यूज? When we do any goods issue, what happens at goods issue? So whenever we are issuing the goods from stock, अगर हम warehouse से goods issue कर रहे हैं, stock को issue कर रहे हैं, so there will be decrease in stock quantity, right? stock का quantity जो है वो storage location से कम होगा, माइनस होगा, because we are issuing the goods from the storage location. Second is, with the decrease in stock quantity, there will be a decrease in stock value as well. Because with quantity, there is a cost associated with that quantity. That cost is also getting reduced from the stock account. So whenever we are doing a goods issue, the stock quantity is reduced, and with the quantity, value is also reduced. So since quantity is also getting changed and value is getting changed, material document will generate and accounting document is also generated. Material and accounting, both documents are generated. Material document is generated, accounting document is generated. And the valuation of the stock, तो जितना क्वांटिटी जा रहा है उतने का वैल्यू कम हो रहा है, तो उसका कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू कौन सी प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है? सो वैल्यूएशन टेक्स प्लेस विथ मटेरियल मास्टर प्राइस.
जहां से हम गुड्स इशू कर रहे हैं, जिस मटेरियल का हम गुड्स इशू कर रहे हैं, उसका जो भी मटेरियल मास्टर का प्राइस है, मूविंग एवरेज होगा तो मूविंग एवरेज प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस होगा तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू क्वांटिटी will be the value that will be reduced from the stock account. ठीक है? So whenever we do goods issues, it must be from unrestricted use stock. If it is for use, अगर वो यूज करने के लिए देना है तो it must be from unrestricted use stock. डिक्रीज इन स्टॉक क्वांटिटी होगा जब भी हम गुड्स इशू करेंगे, डिक्रीज इन स्टॉक वैल्यू होगा जब भी हम गुड्स इशू करेंगे, मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, एंड जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगा स्टॉक का, दैट विल बी बेस्ड ऑन द मटेरियल मास्टर प्राइस. So these are the points to be noted while doing the goods issues. Now we will see two different types of goods issues: unplanned goods issues and planned goods issues. Now what is unplanned goods issue? So unplanned goods issue is there is no reference document to post the goods issue. हमको goods issue करना है बट उसके लिए हमने कोई प्लानिंग नहीं किया है, सडनली कोई रिक्वायरमेंट आया एंड वी डिड द गुड्स इशू. किसी डिपार्टमेंट ने बोला कि मुझे 10 क्वांटिटी चाहिए उसके कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट, तो उस डिपार्टमेंट का बंदा कोई स्लिप लेके आ गया वेयर हाउस में, उसने बोला कि हमको 10 क्वांटिटी चाहिए अगेंस्ट द कॉस्ट सेंटर, एंड यू डू अ गुड्स इशू टू कॉस्ट सेंटर. देयर इज नो रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर दैट. So goods issue to cost center is an unplanned goods issue. Okay. Same way, destructive sampling. What is destructive sampling? So when the quality tests some of the materials, they do destructive sampling. So in sampling process, there is a chance that the material gets destructed. मटेरियल के ब्रेक होने के चांसेस होते हैं. उस टाइप के सैम्पलिंग प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग बोलते हैं. So after the destructive sampling, the material cannot be used. मटेरियल को यूज नहीं किया जा सकता है. That is called as destructive sampling. So if we are doing the destructive sampling from unrestricted use stock, the movement type is 333. From quality, movement type is 331, and from block stock, the movement type is 335. So when the destructive sampling is posted with movement type 333 or any of this movement type, those quantities are posted to quality department's cost center, expense from quality control, because after that the material is not going to be used, expense from quality control. So there will be a decrease in stock value. तो स्टॉक अकाउंट जो है, स्टॉक अकाउंट को एक अमाउंट का क्रेडिट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मटेरियल का 10 क्वांटिटी हमने इशू किया और उसका प्राइस 10 रुपए है, तो स्टॉक अकाउंट से 100 रुपीज माइनस हो जाएगा एंड एक्सपेंस फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल में 100 रुपीज प्लस हो जाएगा. क्वालिटी कंट्रोल में वो यूज हो गया, वो एक्सपेंस हो गया उसका, एंड द मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड. Then there is non-destructive sampling. What is non-destructive sampling? Non-destructive sampling is again a sampling process where material is not destructed. वहां पे मटेरियल ब्रेक नहीं होता है. तो आपने क्वालिटी डिपार्टमेंट को मटेरियल दे दिया, उन्होंने उसको टेस्ट किया, वापस उस मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं. So it's like you transfer the stock to quality inspection. You create a separate storage location for quality's non-destructive sampling. Okay. So a separate lab or a separate storage location you can set up as a lab
Now from your own storage location, you transfer the quantities to quality inspection stock in this particular storage location with movement type 321 unrestricted to quality. तो आपने क्वालिटी में डाला, वहाँ पे क्वालिटी का टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग के दौरान मटेरियल को कुछ भी हार्म नहीं होगा, मटेरियल डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, मटेरियल को वापस यूज किया जा सकता है। तो जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट होगा, वापस the material stock can be moved from quality inspection to unrestricted use stock. That is called as non-destructive sampling. So in non-destructive sampling, the material we do just transfer posting from unrestricted from one storage location to other storage location. You move the stock in that particular storage location, quality sampling will happen, and then again the material will be issued to unrestricted stock for use purpose. तो यहाँ पे अकाउंटिंग का कोई सवाल नहीं आता है। वी आर नॉट पोस्टिंग द अकाउंटिंग। यहाँ पे अकाउंटिंग क्यों पोस्ट कर रहे हैं हम? बिकॉज द मटेरियल इज नॉट गोइंग टू बी यूज। मटेरियल का यूज बाद में होने वाला नहीं है, तो वो मटेरियल कहाँ गया? बिकॉज उसको बाद में यूज तो नहीं कर सकते, तो उसको कहीं पे तो कंज्यूम, कहीं पे तो यूज हो गया है, हमको दिखाना पड़ेगा। इसलिए उसका जो कॉस्ट है वो एक्सपेंस फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल में डाल दिया जाता है। बट इन नॉन डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग अकाउंटिंग का ये नहीं होता, अकाउंटिंग पिक्चर में नहीं आता है। नाउ अनदर अनप्लान्ड गुड्स इशू इज स्क्रैप। यू आर इशूइंग द मटेरियल टू स्क्रैप। मटेरियल खराब हो चुका है, उसको अभी यूज नहीं किया जा सकता, डैमेज हो चुका है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्क्रैप दैट मटेरियल। तो जब मटेरियल को स्क्रैप किया जाता है, तो स्क्रैप के लिए एक सेपरेट जनरल लेजर अकाउंट का यूज होता है। उसका वैल्यू स्क्रैप हुआ करके हमको दिखाना पड़ता है। तो उस जितना क्वांटिटी हम स्क्रैप कर रहे हैं, उसका जितना भी वैल्यू है वो स्क्रैप हो गया, ये हमको दिखाना पड़ता है। उसके लिए एक सेपरेट जीएल अकाउंट में हम उसका वैल्यू पोस्ट करते हैं। द मूवमेंट टाइप्स आर 551, 553, 555। अनरेस्ट्रिक्टेड से कर रहे हैं तो 551। तो स्क्रैपिंग के लिए भी हम मटेरियल अनरेस्ट्रिक्टेड से दे सकते हैं, बट जनरली स्क्रैप के लिए या तो 553 या तो 555 ब्लॉक स्टॉक से जनरली इशू किया जाता है। बट पॉसिबिलिटी है कि आप अनरेस्ट्रिक्टेड से भी स्क्रैप कर सकते हो। सो व्हेन यू डू द स्क्रैपिंग, अगेन स्टॉक अकाउंट जो है, स्टॉक अकाउंट से वैल्यू माइनस होगा। फॉर एग्जांपल 10 क्वांटिटीज आई एम डूइंग इट, एंड इट विल बी पोस्टेड टू स्क्रैपिंग जीएल अकाउंट। स्क्रैप का जो भी जीएल अकाउंट होगा, उस जीएल अकाउंट में 100 रुपीज प्लस होंगे। सो क्वांटिटी वेयर हाउस से आपका माइनस होगा, एंड वैल्यू जो है स्क्रैप के जीएल अकाउंट में पोस्ट होगा। Again, goods issue to cost center is unplanned goods issue. Goods issue to cost center. Movement type is 201. तो जब हम 201 करते हैं, that is goods issue to cost center. किसी cost center को अगर हमने goods issue किया, तो that is also a unplanned goods issue. Again, यहाँ पे क्या अकाउंटिंग होगा? स्टॉक अकाउंट से वैल्यू माइनस होगा, एंड इट विल बी पोस्टेड टू कंजम्पशन जीएल अकाउंट। कॉस्ट सेंटर को एसोसिएटेड जो भी जीएल अकाउंट होगा कंजम्पशन का, उस जीएल अकाउंट में उसका वैल्यू प्लस हो जाएगा। मतलब मटेरियल इज कंज्यूम्ड एज यू इशू टू कॉस्ट सेंटर। So this is what is unplanned goods issue. Now let's see in system how it works. Let me take a material first. Okay. Now this is the stock situation of the material that we are having. Okay. Now the first is destructive sampling, movement type 333. I'll go to MIGO.
goods issue, other, because there is no reference document. Since there is no reference document, we need to select here other, and the movement type is 333. Goods issued to sampling from unrestricted stock. Now, in plant AGP1 storage location 1000, we have 1000 quantities. In plant AGP1 storage location 1000, we have 1000 quantities. So I will issue 50 quantities from here to destructive sampling. So copy the material. Since this is unplanned goods issue, we need to enter all the details manually. मटेरियल डाला, क्वांटिटी डाला 50, कहाँ से देना है, प्लांट AGP1 स्टोरेज लोकेशन 1000, प्लांट AGP1 स्टोरेज लोकेशन 1000. Unrestricted use, so we are issuing it from unrestricted use stock. Check and you can post it. Posted, display it. Material document will be generated, accounting document will be generated. This is our material document which records the information related to material movement. कौन सा मटेरियल है, कितना क्वांटिटी मूव किया, कहाँ से मूव किया, ठीक है, कब मूव किया, किसने मूव किया. All these details are stored in material document number 5684. Now you go to FI documents, open the accounting document. Here you can see this is your stock account. स्टॉक अकाउंट से 9754.01 रुपीज माइनस हो चुके हैं. सो स्टॉक अकाउंट इज माइनस एंड एक्सपेंस फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल शुड गेट 100 रुपीज प्लस. यहाँ पे जो GL अकाउंट मैप है वो उसका डिस्क्रिप्शन जो है अलग है, इन्वेंट्री टेकिंग का है. सो इट शुड बी कंजम्पशन सॉरी एक्सपेंस फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल का जो GL अकाउंट होगा वो यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है. सो 9754 यहाँ से माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ. तो ये 9754 वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया सिस्टम ने, 50 क्वांटिटीज हमने गुड्स इशू किया है. सो 50 इंटू मटेरियल मास्टर का जो इसका प्राइस रहेगा, सो 50 इंटू 195.08. सो इफ यू डू इट, कैलकुलेट हियर, 50 इंटू 9754. That is what is the value, right? 9754.01. So the value is calculated based on the material master price. So whenever you do a goods issue, decrease in stock quantity. Now refresh the stock and check. यहाँ पे 1000 था, हमने 50 गुड्स इशू कर दिया. 50 quantities are reduced from here. So decrease in stock quantity, decrease in stock value. So quantity का decrease हमने यहाँ पे देखा, value का decrease हमने यहाँ पे देखा. यहाँ पे वैल्यू माइनस है, मतलब स्टॉक अकाउंट से वैल्यू माइनस हो गया. मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, और वैल्यू जो है वो मटेरियल मास्टर की प्राइस से कैलकुलेट हो गई. नाउ 331, 335 यू कैन ट्राई. व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट चेंज द मूवमेंट टाइप टू 331. सो इफ आई सिलेक्ट हियर गुड्स इशू 331, नाउ गुड्स इशू फ्रॉम क्वालिटी इंस्पेक्शन. तो यहाँ पे आपने मटेरियल डाला, क्वांटिटी डाला, कहाँ से, this time the goods will be issued from quality inspection stock type. Deficit of storage location stock in quality inspection. तो ये बोल रहा है AGP1 storage location 1000 में क्वालिटी इंस्पेक्शन में स्टॉक नहीं है, विच इज करेक्ट. तो अगर स्टॉक नहीं है तो हम गुड्स इशू नहीं कर सकते हैं. स्टॉक होना चाहिए गुड्स इशू के लिए. तो यहाँ पे स्टॉक का क्वांटिटी नहीं है तो आप गुड्स इशू नहीं कर सकते हो.
यहाँ पे दिख रहा है कुछ SL01 30 AGP2। AGP2 के SL01 में 30 क्वांटिटीज क्वालिटी इंस्पेक्शन में है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी 10 कर सकते हैं। आउट ऑफ 30 वी विल इशू 10 प्लांट AGP2, storage location SL01, check. Now this is okay. Posted. Again same things will happen. मटेरियल डॉक्यूमेंट होगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। एंड इफ यू रिफ्रेश द स्टॉक नाउ, यहाँ पे 30 की जगह पे अभी 20 देखेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड? सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग। नाउ नॉन डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग इज जस्ट ट्रांसफर पोस्टिंग 321 322, ठीक है। तो आप वो बुक से रीड कर लेना, उसमें कुछ ये नहीं। नाउ स्क्रैपिंग, व्हेन यू इशू द गुड्स टू स्क्रैप, ठीक है। स्क्रैप अनरेस्ट्रिक्टेड से भी किया जा सकता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन से भी किया जा सकता है, या ब्लॉक स्टॉक से भी किया जाता है। जनरली मटेरियल को अगर स्क्रैप करना है तो पहले ब्लॉक स्टॉक में मूव किया जाता है एंड देन यू डू द स्क्रैप। ब्लॉक स्टॉक में क्यों मूव किया जाता है? बिकॉज व्हेन यू मूव द क्वांटिटीज इनटू ब्लॉक स्टॉक यू कैन नॉट यूज दैट क्वांटिटीज। तो जैसे ही कोई मटेरियल डैमेज होता है या जिसको यूज नहीं करना है, उसको पहले ब्लॉक में डाला जाता है एंड देन जब डिसीजन होगा कि उसको स्क्रैप करना है तो उसको ब्लॉक से स्क्रैप किया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है तो यहाँ से हमको ब्लॉक में डालना पड़ेगा और ब्लॉक से फिर मूवमेंट टाइप 555 का यूज करके हम ब्लॉक से उसको स्क्रैप कर सकते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड से करना है तो 551 से कर सकते हैं, क्वालिटी से करना है तो 553 से कर सकते हैं। सो वी विल डू फ्रॉम हियर, क्वालिटी से हम करेंगे 20 क्वांटिटीज है, ये 20 के 20 अगर मैं यहाँ से स्क्रैप कर देता हूँ, सो विल डू अ स्क्रैप नाउ, गुड्स इशू टू स्क्रैप। अगेन ट्रांजैक्शन क्या सिलेक्ट करना है? गुड्स इशू, देयर इज नो रेफरेंस डॉक्यूमेंट, सो यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट में अदर रहेगा, मूवमेंट टाइप विल बी 553। अगर क्वालिटी से करना है गुड्स इशू टू स्क्रैपिंग फ्रॉम क्वालिटी इंस्पेक्शन तो मूवमेंट टाइप इज 553। मटेरियल सिलेक्ट किया हमने, इंटर किया, क्वांटिटी कितना करना है? 20 स्क्रैप करना है, 20 डाला, प्लांट AGP2, स्टोरेज लोकेशन SL01, गुड्स इशू फ्रॉम क्वालिटी इंस्पेक्शन स्क्रैप। तो यहाँ पे 20 क्वांटिटी क्वालिटी इंस्पेक्शन में है AGP2 प्लांट में, इन स्टोरेज लोकेशन SL01, तो मैं इसको स्क्रैप करने जा रहा हूँ। चेक इट। Now here we need to specify a scrap vendor and cost center. It should not ask, but I guess here the field is made as mandatory. Scrapping के लिए cost center जनरली होता नहीं है, यूज भी ये कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, ठीक। यहाँ पे ये फील्ड को शायद मैंडेटरी किया हुआ है, जनरली स्क्रैप के लिए कॉस्ट सेंटर का जरूरत नहीं होता है। चेक इट एंड यू कैन पोस्ट इट। सो व्हेन यू पोस्ट इट, यहाँ पे 553, just 1 second now. So if you see here, when we are doing it from unrestricted use stock, it is not asking us cost center. But when we are doing it from quality inspection stock, it is asking cost center. So some settings are, किसी ने यहाँ पे सेटिंग को चेंज किया होगा। जनरली when we do the scrapping from, generally when we do the scrap, we don't have to issue the we don't have to select the cost center. It is posted to scrap GL, जो automatic account determination में मैप किया होता है। So check this and post this. So we are doing it from now
plant AGP to storage location SL01, plant AGP to storage location SL01, 200 क्वांटिटीज अनरिस्ट्रिक्टेड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2000 क्वांटिटीज है, इसमें से 20 क्वांटिटीज का हम स्क्रैप कर रहे हैं, चेक इट, पोस्ट इट। मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, गो टू डॉक्यूमेंट इन्फो, FI डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, यू कैन सी स्टॉक अकाउंट से वैल्यू माइनस हो गया एंड कंजम्पशन अकाउंट को वैल्यू प्लस हो गया। दिस इज द GL अकाउंट टू विच द स्क्रैप इज पोस्टेड, 410000, 410000। तो स्क्रैप का जो GL अकाउंट है उसमें पोस्ट हो जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन रियल टाइम सिस्टम में आपको स्क्रैप करके होगा। यहाँ पे अभी ये टेस्ट सिस्टम है, यहाँ पे जो अकाउंट्स मैप होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन अलग हो सकते हैं, राइट। इफ आई refresh the stock now, 20 quantities will be reduced from here, 1980 is available in stock now. So this is what is goods issue to scrap. Then goods issue to cost center 201. Now in this particular goods moment we need to provide cost center to system. Copy it, close it, go to Migo, select goods issue, other, moment type is 201, goods issue to cost center, enter the material quantity. If I am issuing 50 quantities, from where you want to issue AGP to, यहाँ से मैं 50 भेज देता हूँ SL03 से, तो SL03 में हम डाल देते हैं। नाउ गुड्स इशू टू कॉस्ट सेंटर जो है अनरेस्ट्रिक्टेड यूज से ही होता है, ठीक है। चेक इट, एंटर अ कॉस्ट सेंटर, नाउ इट इज टू द कॉस्ट सेंटर, so cost center is mandatory here, check it and post it. So again this is a unplanned goods issue, इसमें कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं है, गुड्स इशू कर रहे हैं हम 201 मूवमेंट टाइप, गुड्स इशू टू कॉस्ट सेंटर, प्लान डाला, स्टोरेज लोकेशन डाला, यू कैन पोस्ट इट, डिस्प्ले इट, चेक द अकाउंटिंग एंट्रीज, स्टॉक अकाउंट से वैल्यू माइनस होगा एंड कंजम्पशन अकाउंट को वैल्यू प्लस होगा 9754। If you refresh the stock, you can see 50 quantities will be reduced from the storage location. 950 quantities will be there. So this is goods issue to cost center. Now planned goods issue. What is a planned goods issue? So as the name suggests, planned. So we have already planned for that goods issue. Means there is a document created in system. For example, when we create a reservation, now we have not learned reservation, okay. Now we have created a purchase order. Let us take an example of purchase order. So when we create a purchase order, we specify a delivery date in the purchase order. So what is meaning of delivery date? By that date we are expecting material from vendor. Vendor ने हमको material उस date पे deliver करना चाहिए. So basically we are planning the receipt of that material. वो material हमको कब चाहिए उसका हम planning कर रहे हैं by giving a delivery date to vendor. तो जिस तारीख को वो मटेरियल हमारे पास आएगा, वेंडर डिलीवर करेगा, अकॉर्डिंगली वी विल प्लान आवर एक्टिविटीज इन आवर वेयर हाउस। उसको रिसीव कब करना है, रिसीव करने के लिए जो भी मैन पावर चाहिए वो होगा या नहीं होगा, और उसको हम रिसीव कर रहे हैं फॉर अ पर्पस विच इज प्लान्ड, प्रोडक्शन होगा उसके लिए हम उसको परचेस कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लान्ड गुड्स इशू। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, STO फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, एक प्लांट दूसरे प्लांट से परचेस ऑर्डर रेज करके मटेरियल को ऑर्डर कर रहा है, तो उसमें भी एक डिलीवरी डेट होगा। तो जो रिसीविंग प्लांट है वो सेंडिंग प्लांट को बोल रहा है कि इस तारीख को हमको ये मटेरियल चाहिए। एंड व्हेन वी डू अ गुड्स इशू फ्रॉम इशूइंग प्लांट, वी यूज रेफरेंस ऑफ द परचेस ऑर्डर।
right? So there is a reference document when there is a planned goods issue. तो जब भी गुड्स इशू प्लान होता है तो देर इज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ऑलरेडी उसका प्लानिंग हुआ है, और जिस डॉक्यूमेंट को यूज करके हमने उसका प्लानिंग किया है उसका रेफरेंस देके फिर हम गुड्स इशू पोस्ट करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लान्ड गुड्स इशू. फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन. नाउ व्हाट इज अ रिजर्वेशन? रिजर्वेशन जैसे हम ट्रेन के टिकट्स रिजर्व करते हैं, फ्लाइट के टिकट्स रिजर्व करते हैं. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन? वी आर बुकिंग सीट्स इन एडवांस. हमको किसी पर्टिकुलर डेट पे विच इज इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई डेट है, उस डेट पे हमको ट्रैवल करना है, तो उस दिन का हम एडवांस में रिजर्व कर रहे हैं, सीट को रिजर्व कर रहे हैं, सो दैट वी हैव अ सीट ऑक्युपाइड ऑन दैट डे फॉर आवर ट्रैवल. हमारा ट्रैवल स्मूथ हो जाए इसलिए हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, सीट को बुक कर रहे हैं, सो दैट व्हेन यू गो ऑन दैट डेट, on the plan date, when you start your journey, you have a seat reserved for you, आप उसको यूज कर सकते हैं. अगर आपने अपनी रिजर्वेशन नहीं किया है तो ये भी हो सकता है कि जिस दिन आपको जाना है उस दिन आपको सीट ही ना मिले, राइट? सो इन SAP we have provisions of reservations on stock quantities. अगर मैंने कोई गुड्स इशू प्लान कर रखा है, गुड्स इशू टू कॉस्ट सेंटर, किसी कॉस्ट सेंटर ने मुझे बोला है कि आज 24 तारीख है और 27 तारीख को मुझे 200 क्वांटिटी चाहिए. I have a request from a cost center for 200 quantities on 27th of July. 27 जुलाई को मुझे कॉस्ट सेंटर को 200 क्वांटिटी देना है. उसके लिए एक रिजर्वेशन उन्होंने किया है. So when they reserve a stock, when we create a reservation in the system, stock reserve हो जाता है. एंड फिर वेयर हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस डेट पे जब वो स्टॉक रिक्वेस्टेड है वेयर हाउस में उतना क्वांटिटी होना चाहिए. So I will create a reservation first so that you will understand, and then we will do the goods issue against a reservation. MB21 is the transaction code to do the reservations. Tomorrow I'll take reservations chapter. Okay, so create reservation. Here you can say base date. So this is the date when you are planning to do your activity. For example, I select here 27th of July. So 27th of July पे मैं एक गुड्स इशू टू कॉस्ट सेंटर विच इज 201 करना चाहता हूँ. कहाँ से करना चाहता हूँ? प्लांट AGP2 से करना चाहता हूँ. ठीक है. सो मूवमेंट टाइप 201, गुड्स इशू टू कॉस्ट सेंटर. कौन सा कॉस्ट सेंटर यूज करना है? 1000 यूज करना है. कौन सा मटेरियल है जिसको आप रिजर्व कर रहे हो? Now this is the material that I want to reserve in plant AGP2. Copy the material. मैंने यहाँ पे मटेरियल डाला. कितना क्वांटिटी आप रिजर्व कर रहे हो? 500 क्वांटिटीज आई वांट टू रिजर्व. कौन से स्टोरेज लोकेशन पे आप रिजर्वेशन करना चाहते हो? SL03 पे मैं रिजर्वेशन करना चाहता हूँ. SL03 and you can save it. So a document is created and this is the number of that document 94 times 0220, which we call it as a reservation. Let's display the reservation document and you can see these details are there in the reservation document. So हमने एक 201 प्लान किया है. कब प्लान किया है? 27 जुलाई को प्लान किया है. कहाँ से प्लान किया है? प्लांट AGP2 स्टोरेज लोकेशन SL03 से प्लान किया है. Now if you refresh the stock you can see the reservation details here. See here, reserved quantities 500. तो यहाँ पे 950 क्वांटिटी जो है उसमें से 500 क्वांटिटी रिजर्व हुआ है. किस चीज के लिए रिजर्व हुआ है? टू डू अ गुड्स इश्यू अगेंस्ट कॉस्ट सेंटर. Now when you have a reservation you can do a goods issue. तो 27 तारीख जब आएगा उस दिन पे वेयर हाउस का यूजर क्या करेगा? मीगो में जाएगा एंड ही विल डू अ गुड्स इशू
अगेंस्ट रिजर्वेशन, नॉट कॉस्ट सेंटर। अगर अनप्लान्ड होता तो डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर डाल के वो गुड्स इशू कर देता, बट यहाँ पे यूजर ने ऑलरेडी प्लानिंग किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? बाय क्रिएटिंग अ रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट। सो व्हेन on 27th of July, when the user issues this material to that cost center, he will select here goods issue, and in reference, instead of other, now he will select a reservation, because उसके लिए यूजर ने ऑलरेडी रिजर्वेशन किया हुआ है. So we will use this reservation number for goods issue. So we are giving a reference document as reservation number. That is why it is called as planned goods issue. हम कर क्या रहे हैं? 201 ही कर रहे हैं, तो जो इफेक्ट होगा वो सिमिलर होगा. स्टॉक अकाउंट से वैल्यू माइनस होगा, कंजम्पशन अकाउंट को वैल्यू प्लस होगा, बट उस इस गुड्स इशू टू कॉस्ट सेंटर के लिए हम एक रिजर्वेशन का रेफरेंस ले रहे हैं, रिजर्वेशन का यूज कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज प्लान्ड गुड्स इशू. पोस्टेड. पोस्टेड तो जो भी इफेक्ट होगा मटेरियल डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सेम होगा, वैल्यू में जो जीएल अकाउंट्स पोस्ट होंगे वो भी सेम होंगे, but instead of doing directly with goods issue other movement type 201, we used a reference document as a reservation. So when there is a reference document to use, it is called as planned goods issue. तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से 500 क्वांटिटी माइनस हो गया, और जो रिजर्वेशन था वो भी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे जो रिजर्व था वो 0 हो गया. The next example is goods issue with reference to a production order. अगर सिस्टम में कोई प्रोडक्शन ऑर्डर है, द मूवमेंट टाइप इज 261. अगर कोई प्रोडक्शन ऑर्डर है तो गुड्स इशू विथ रेफरेंस टू एन ऑर्डर. सो इफ आई गो टू मीगो, गुड्स इशू, और यहाँ पे मैं ऑर्डर सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर. सो मूवमेंट टाइप इज 261 एंड उस प्रोडक्शन ऑर्डर में जो भी मटेरियल्स होंगे उनका गुड्स इशू होगा. नाउ यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने के लिए पूरा सेटअप नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं दिखा सकता हूँ, बट लेटर आई विल शो. नाउ सेकंड थर्ड एग्जांपल इज गुड्स इशू विद रेफरेंस टू पीओ. अगर परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने गुड्स इशू किया तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लान्ड गुड्स इशू. फॉर एग्जांपल मूवमेंट टाइप 351 कल ही हमने देखा था. सो इफ आई हैव दैट पीओ, पीओ डॉक्यूमेंट टाइप UB document type, right? Stock transport order, plant AGP2 से AGP1. I'll create a new PO. So if you see here, we are trying to move this material from AGP2 plant to AGP1 plant with reference to a purchase order. Now, how much quantities? 500 quantities. Save the PO. Display the purchase. Now this is our sending plant AGP2. तो AGP2 से गुड्स इशू होगा विथ रेफरेंस टू परचेस ऑर्डर. ठीक है, मैंने पीओ को कॉपी किया, गो टू मीगो, सिलेक्ट हियर गुड्स इशू. नाउ द रेफरेंस डॉक्यूमेंट इज परचेस ऑर्डर. एंटर हियर. Release strategy is there, so we need to release it. ME29N. Enter the PO number. Save it. You go now.
AGP2 के कौन से स्टोरेज लोकेशन से हमको इशू करना है? 301। चेक 301 से मैं कुछ क्वांटिटी इशू करने जा रहा हूँ तो SL01 से AGP2 SL01, यहाँ से मैं 500 क्वांटिटीज को इशू कर रहा हूँ। 500 quantities AGP2 SL01 unrestricted use stocks. Check it and post it. So what we did, we selected goods issue and the reference document used here is purchase order. So with a purchase order, we have already planned this goods issue. So PO है, रिजर्वेशन है या प्रोडक्शन ऑर्डर है, इसका मतलब हमने प्लान किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी डेट्स इंक्लूडेड है, कौन सी तारीख को एक्टिविटी करना है, and based on that plan then we are doing the goods issue by using the reference documents which are used to plan those goods movement. That is why it is called as planned goods issue. तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। अगेन अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पे जनरेट होगा, मटेरियल डॉक्यूमेंट होगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होगा, स्टॉक का क्वांटिटी रिड्यूस होगा। इफ यू रिफ्रेश इट, यहाँ से 500 क्वांटिटी अभी माइनस हो जाए, 500 क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड, और वो 500 क्वांटिटी AGP1 प्लांट में रिसीव होने के बाद वहां पे वो डिस्प्ले होगा। सो दिस इज हाउ यू यूज द planned and unplanned goods issues. So with this, goods issue chapter is completed.